चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और ऐसे में सीधा रुख करते हैं लोकसभा का। रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राव इंद्रजीत सिंह जी। On behalf of the Minister of Culture, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 2 of today's revised list of business. Thank you. Item number 3, Dr. Jitendra Singh जी, please. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। आइटम नंबर 4। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay papers on behalf of my colleague Shri Jain Chaudhary, mentioned against his name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 5 श्री श्रीपाद जयसवाल नायक जी। Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 5 of today's revised list of business. आइटम नंबर 6 श्री पंकज चौधरी जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay papers on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, mentioned against his name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 7 श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी। Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 श्रीमती रक्षा खड़कर जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of the following paper, Hindi and English version, as shown against serial number 8 in today's revised list of business. आइटम नंबर 9 श्री सुकांत मजुमदार जी। Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 9 in today's revised list of business. आइटम नंबर 10 श्री हर्ष माल्होत्रा जी। Honorable Chairperson sir, I beg to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 10 in today's list of business. आइटम नंबर 11 श्रीमती नीमूबेन बर्मन जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 12 श्री जॉर्ज कुरियन जी। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name, serial number 12 in the revised list of the business for today. आइटम नंबर 13 महासचिव। Following the bill passed by the Houses of Parliament during the second session of 18th Lok Sabha and assented to by the President since the report was asked to the House on 27 June 2024. 1. The Jammu and Kashmir Appropriation Number 3 Bill 2024. 2. The Appropriation Number 2 Bill 2024. 3. The Finance Number 2 Bill 2024. आइटम नंबर 14 डॉक्टर फगुन सिंह कुलस्ते जी। श्री अनंत नायक जी। मैं प्रस्ताव करता हूं इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331 ख के उप नियम 1 के साथ पठित नियम 254 के उप नियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से श्री कृष्णलाल कनवार, जिन्होंने 14 अक्टूबर 2024 से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति के शेष अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।
प्रश्न यह है कि श्री अनंत नायक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15 श्री गणेश सिंह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूँ। यह सभा राज्यसभा से यह सिफारिश करती है कि राज्यसभा श्री बीड़ा मस्तान राव यादव, जिन्होंने दिनांक 29/8/2024 को राज्यसभा से त्याग कर दे दिया है, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के साथ संयोजित कर रहे हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों में से एक सदस्य को निर्वाचित करने पर सहमत हो और समिति में इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि श्री गणेश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 16 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Speaker sir, with your kind permission, I rise to move that in pursuance of the subsection bracket 1 of section 5 read with section 1 and bracket 2 of section 6 of the Sri Chitra Tribunal Institute of Medical Sciences and Technology, Trivandrum Act 1980, the members of this house do proceed to elect in such manner as the speaker may direct 2 members from amongst themselves to serve as members of the Institute of the State Chitra Institute for Medical Science and Technology, Trivandrum, subject to the provisions of the Act and the rules and regulations laid down thereafter. प्रश्न यह कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नियम 377 के अधीन सभापटल पर रखे जाने वाले मामलों को संबंध में अध्यक्ष पीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो अपना मामलों को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभापटल पर रख दे। रिक्वेस्ट करो बैठ जाए प्लीज प्लीज। आज तो कुछ इम्पोर्टेंट उस इश्यूज सदन को चलने दीजिए। आपका भी सुना जाएगा, आपका भी सुना जाएगा, आपको भी पूरा मौका मिलेगा। आप प्लीज बैठिए, अपना सीट पे बैठिए प्लीज प्लीज प्लीज। आप अपना सीट पे बैठिए प्लीज। सदन को चलने दीजिए। सदन का महत्वपूर्ण सदन समय है। सबका देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। प्लीज आप अपने सीट पर बैठिए, अपने सीट पर बैठिए प्लीज प्लीज प्लीज। अपने सीट पर बैठिए प्लीज प्लीज। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 28 नवंबर 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और ऐसे में विपक्ष का लगातार हंगामा देखने को मिला और ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल तक 11 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। ऐसे में विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।
और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कल 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते काफी ज्यादा सदन में गतिरोध देखने को मिला। देखिए, बिल्कुल सदन में गतिरोध बना हुआ है और दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित है। लोकसभा की कार्रवाई अब कल तक 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो भारी हंगामा, शोरगुल और जिस तरीके से सदन के बाहर भी राहुल गांधी ने संसद परिसर में बयान देते हुए हमला बोला है, अडानी मुद्दे पर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये काफी गंभीर मुद्दा है। इस पूरे मुद्दे पर जेपीसी की मांग की जा रही है और इसी को लेकर दोनों सदनों में ये मुद्दा उठाते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत तुरंत चर्चा शुरू हो, इस मुद्दे पर जेपीसी बनाए जाए, ये नारे लगाए गए। इस बीच सदन में गतिरोध बना रहा और सदन की कार्रवाई बाधित हो गई। राज्यसभा में भी यही आलम रहा, राज्यसभा में कार्रवाई बाधित रही और इस बीच सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी विपक्ष पर हमला बोला, ये कहते हुए कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि विपक्ष मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के जो नियम विरुद्ध जो प्रक्रियाएं हैं उसके तहत वो यहाँ पर अपनी मांग रख रहे हैं। जबकि एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत प्रश्नकाल की कार्रवाई होती है और उसके बाद 0 ओवर में वो अपनी बात रख सकते हैं नियमों के मुताबिक। लेकिन तुरंत चर्चा की मांग और स्थगन प्रस्ताव के तहत तुरंत चर्चा हो, इस पर विपक्ष चढ़ा हुआ था और इसीलिए गतिरोध बना हुआ है। दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई है और लोकसभा की कार्रवाई भी कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच संभल मामले को लेकर भी हंगामा रहा है और इसको लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आक्रामक तीखी बहस देखने को मिली है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो संसद परिसर में राहुल गांधी ने भी बयान दिया और ऐसे में अडानी के आरोपों को गंभीर बताया गया है और साथ ही ये कहा कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना ही नहीं चाहती। तो ऐसे में तमाम तरह का गतिरोध सदन में, दोनों सदनों में देखने को मिला। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी का आरोप है कि जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ है, यहाँ पर गिरफ्तारी की मांग उन्होंने दोहराई है। राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया कि अडानी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है, तो राहुल गांधी ने कहा कि आप किस दुनिया में हो कि आपको लगता है कि अडानी आरोप स्वीकार करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें छोटे मोटे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। क्या आपको लगता है कि अडानी अमेरिकी अदालत में अभियोग को स्वीकार करेंगे? ये उनका क्वेश्चन करते हुए उन्होंने तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। तो ये संसद परिसर में उनका बयान हुआ है और उसके बाद कहीं न कहीं इससे पहले कार्रवाई पर भी असर पड़ा और उसके बाद दोनों सदनों में कार्रवाई बाधित हुई है। कार्य साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। वहीं बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही कार्यवाही स्थगित हो गई है और ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और ऐसे में संसद परिसर में राहुल गांधी ने बयान दिया और ऐसे में अडानी पर लगे आरोपों को गंभीर बताया गया है। सरकार इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, तो तमाम तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, राहुल गांधी का ये बयान देखने को मिला और साथ ही छोटे मामलों में कई लोग जेल जा चुके। संसद परिसर में राहुल गांधी ने बयान दिया और ऐसे में विपक्ष लगातार अडानी के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिल रहा है, गतिरोध देखने को मिल रहा है और ऐसे में इसी गतिरोध को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और संसद परिसर में राहुल गांधी ने बयान दिया अडानी पर लगे आरोपों पर। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।